Lord and Savior Jesus Christ. We praise God for the opportunity that He has given us to listen and grow in His Word through the medium of YouTube. This Holy Week, we are privileged to have God's servant with us, Mr. Jenny Christopher. Brother Jenny Christopher worked as a therapist in a polio rehabilitation center in Telangana for 12 years. And upon receiving God's call, he left the job and joined the Indian Evangelical Mission as a missionary. He is blessed with a wife and 2 daughters. His wife, Vijaya, also serves as a missionary at IEM. His eldest daughter has done her MBA and is now working in a company with public relation, and the youngest daughter is a dentist. They are settled in Bangalore for the last 15 years. Mr. Jenny Christopher presently serves as the National Secretary for Church Supportive Ministry in IEM. He will be speaking on the overall theme of power of Christian passion. He will be bringing to us God's Word every evening from 28th April to 4th March at 8 p.m. These sermons will be in both Hindi and in English. Along with it, every morning the meditations will be at 10 a.m. on the theme of 7 cries of Christ on the cross, and on Good Friday the meditation will be on the last 3 sayings from the cross, and it will be premiered at 9 a.m., 12 p.m. and 2 p.m. respectively. We request you to prayerfully attend these services and be blessed. Now I hand over the time to Brother Jenny Christopher to bless us with the Word of God. Dear friends, it's a great joy once again to be back with our devotions on the Passion Week. प्यारे मित्रों, फिर से एक बार ये बहुत ही अच्छा है कि हम हमारे पवित्र सप्ताह के मननों में, अध्ययनों में वापस आने पाए हैं. Starting from today, the Passion Sunday or the Palm Sunday till Easter, we call it a Passion Week. आज से लेके पुनरुत्थान दिन तक ये 1 हफ्ते 8 दिन का जो समय है, इसे हम दुख सहन सप्ताह या फिर दुख उठाने का सप्ताह ऐसे जानते हैं. We talk today about Palm Sunday, Jesus entering into Jerusalem. और आज का रविवार जो है, जो खजूरी का रविवार है, आज के दिन जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके बारे में हम देखते हैं. And then later on we see how he was, interrogated by the religious leaders of those days. और उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह को उस समय के धर्मी अगुवों के द्वारा प्रश्न किए गए थे. And then how he was caught into having a blasphemy, and they have taken him into custody. और फिर किस प्रकार हम देखते हैं कि उसने दुर्भाषण किया है, ऐसा आरोप उस पर लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. All this has happened because it was prophesied long ago. ये सब कुछ इसीलिए हुआ था क्योंकि ये बहुत सालों पहले इसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी. Anything that happened to the Lord during this week is not an accident. जो कुछ भी परमेश्वर प्रभु के साथ ये सप्ताह के दरमियान हुआ, ये आकस्मिक नहीं था. It was planned and purposed by God for all of us. ये तो परमेश्वर के नियोजन और आयोजन में हम सभी के लिए ये सब कुछ पहले से ही आयोजन इसका किया गया था. And today we are going to talk about the Palm Sunday. तो आज हम ईस्टर के पहले के रविवार, जिसको खजूरी का रविवार कहा जाता है, उसके बारे में देखने वाले हैं. The event is been mentioned both in Matthew's Gospel and also in Luke's Gospel. और ये जो पूरी घटना है, ये मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार दोनों में लिखी गई है. As I told you, this visit is the last visit of Jesus into Jerusalem. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो यात्रा है, ये यरूशलेम की तरफ की यात्रा, यीशु मसीह की आखिरी यात्रा है यरूशलेम को.
Why was he entering into Jerusalem now? अभी वो यरूशलेम में क्यों प्रवेश कर रहे थे? To die as a ransom for all of us. ताकि वो हम सबके लिए एक कीमत चुकाए और हमारे लिए वे मारे जाए। That's the purpose he came to this earth, basically. और दरअसल में इस पृथ्वी पर वे इसी हेतु के साथ आए थे। That's what we see in Matthew's Gospel, chapter 20 and verse 28. और इसी बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 और 28 में भी पढ़ते हैं। But when he entered into Jerusalem, there were many things that Jesus manifested to people. परंतु वे जब यरूशलेम में प्रवेश किया तब बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यीशु मसीह ने लोगों के सामने रखी। And many a times people give importance to the donkey or to the palm trees. और काफी बार जो है लोग उस गधे को महत्व देते हैं या फिर वो जो खजूरी की जो डालियां थी उसको महत्व देते हैं। I have seen churches where a person is being dressed up like a Jesus, put on a donkey and taken all around the church. मैंने ऐसी कलीसिया को भी देखा है जहां पर किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के रूप में ऐसा बनाकर फिर उसको एक गधे पर बिठाकर उसको चारों ओर घुमाते हैं। We can do that just for our interest. ये तो हमारे खुद के रस के लिए हम इस बात को कर सकते हैं। But that is not the purpose why Jesus entered into Jerusalem. परंतु ये कोई हेतु नहीं था जिसकी वजह से यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया था। But there are many lessons that we can learn from what has happened on that particular day. परंतु उस दिन जो जो घटनाएं हुई है उसमें से बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षण हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं। First of all, let us see how Jesus manifested himself on that very particular day. सबसे पहले आइए हम देखिए कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को उस दिन की उस घटना में अपने आप को प्रस्तुत किया। So let us turn to the Luke's Gospel, chapter 19. तो आइए हम लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय को खोलें And verse 38. और उसके 38 पद से। Blessed is the King who comes, peace in heaven and glory in the highest. धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। A very beautiful word that has been given about Jesus. और ये बहुत ही सुंदर ऐसा व्याख्यान है, शब्द है जो यीशु मसीह के बारे में उसके लिए दिया गया है। It is the disciples that told all these things about Jesus. और ये तो चेले थे जिन्होंने इन सब बातों को यीशु मसीह के बारे में कहा था सबके सामने। They were greatly rejoicing and praising God. और वो बहुत ही आनंद में थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। We know in other passage it says that they were shouting Hosanna. दूसरे शास्त्र पाठों में हम ये पढ़ते हैं कि वो तो होसाना के पुकार कर रहे थे। The meaning Hosanna means not praising God. और होसाना का मतलब परमेश्वर की स्तुति करना नहीं है। It means save us. होसाना का मतलब है हमें बचाओ। So it is kind of a cry for help. तो मतलब ये तो मदद के लिए पुकार है। So the disciples were also shouting Hosanna, saying that save us Lord, save us Lord. इसीलिए वे चेले भी उस समय होसाना के पुकार कर रहे थे, कह रहे कि प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ। So that's a very beautiful meaning within that. तो इसका मतलब है इसके अंदर बहुत ही सुंदर ऐसा मतलब छुपा हुआ है। But in Luke's Gospel, chapter 19, they have revealed something else about the Lord Jesus Christ. परंतु लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में उन लोगों ने प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और एक बात, नई बात को प्रकट की है। The one who is coming, they said that he is the king. उन्होंने कहा है कि जो आ रहा है, उन्होंने कहा है कि वो राजा है। So that's a very, very important truth. और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। Jesus is indeed a king of kings. यीशु मसीह सचमुच में एक राजाओं के राजा है। And he is willing to rule. और वे राज्य करना चाहते हैं। He is willing to reign over us. वो हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। So when we accept Jesus Christ
into our hearts, तो मतलब जब हम यीशु मसीह को हमारे हृदय में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, we not only accept him as a savior, हम ना ही केवल उनको एक उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकारते हैं, but we also accept him as the Lord and King of our lives. परंतु उन्हें हमारे जीवन के प्रभु, मालिक और राजा के तौर पे हम उनको ग्रहण करते हैं। Why do we accept him as the King of our lives? हम हमारे जीवन के राजा के तौर पे उसे क्यों ग्रहण करते हैं? Because he should rule us, ताकि वो हमारे ऊपर राज करे and our lives should be ruled by him and reigned by him. और हमारे जीवनों के अंदर उनका राज चले, उनकी सत्ता चले। Because when he rules, when he reigns, that ruling will be a great, peaceful and joyful ruling. क्योंकि जब वे राज करेंगे, जब हमारे जीवन पर वे सत्ता चलाएंगे, तो वो राज्य जो है वो बहुत ही शांति, आनंद और प्रेम से भरा राज्य होगा। Any individual that is been ruled by the Lord Jesus Christ will be at peace. जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का राज चलता है, वो अपने जीवन में शांति का अनुभव करेगा। Any family that is ruled by the Lord, by the King Jesus Christ, it will be at peace. और जो भी परिवार के अंदर यीशु मसीह एक राजा के तौर पर राज करेगा, वो भी शांति का अनुभव करेंगे। Any nation that has Jesus as the King, that nation will be at peace. जो भी राज्य, जो भी देश भी क्यों ना हो, अगर उस देश में भी यीशु मसीह एक राजा के तौर पे होगा, तो वहां पे शांति बनी रहेगी। So indirectly what disciples are saying is the one who is coming is not only a savior, but he is going to be the king of our lives. इसीलिए परोक्ष रीति से जो चेले बता रहे हैं सबको, वो ये बता रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो आ रहा है वो ना ही केवल सिर्फ उद्धार करता है, परंतु वो तो हमारे जीवनों का हमारा राजा है। If you really want to worship the Lord today, you need to accept him as the king of your lives. यदि आप सचमुच में उनकी आप आराधना करना चाहते हैं आज, तो आपको अपने जीवन में उन्हें अपने राजा के तौर पर ग्रहण करने की आवश्यकता है। You know, many people, they want Jesus in their lives, but they do not want Jesus to rule them. और बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में यीशु मसीह चाहिए कि वो उनके जीवन में आए, परंतु वो ये नहीं चाहते कि यीशु मसीह उनके ऊपर राज करे। There was a man who was taking a ride on a chariot, एक व्यक्ति था जो घुड़सवारी पर था, and that chariot has 4 horses. और उस घुड़सवारी, उस रथ के ऊपर 4 घोड़े थे। And then he was trying to handle all the cables in his hand. और वो अपने हाथों में सारे लगामों को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था। And it so happened that he pulled it in a wrong way, and all the horses they took a very great speed. और बहुत ही उसने जब वो कंट्रोल नियंत्रण में लाने का कोशिश कर रहा था, तब उसने शायद एक गलत रीति से उसको खींच लिया। उसकी वजह से सारे घोड़े जो थे वो बहुत ही तेजी से दौड़ने लगे। And he was finding it very difficult to control the speed. और वो उस गति को नियंत्रण में नहीं ला पा रहा था अपनी। And then there was one elder man standing next on the roadside, saw him. और फिर वहां पर सड़क के किनारे एक वडील था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो उसको देख रहा था। And then he came running beside the chariot. और फिर उसके बाद वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो उस रथ के पीछे दौड़ा। And then that man said, "Please let me in, I will help you." और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मुझे अंदर आने दे, मैं तेरी मदद करूंगा। But this man said, "Tell me what to do from there, I will control it." परंतु ये जो रथ में बैठा हुआ व्यक्ति था वो कहता, तू वहां पर खड़े खड़े मुझे बता क्या करना है, मैं खुद कर लूंगा। But that man said, "It doesn't work unless you let me in." परंतु वो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ऐसा नहीं होगा जब तक तू मुझे अंदर नहीं आने देगा तब तक। Finally, that man found out that he cannot do anything on his own. और फिर अंततः उस व्यक्ति ने, रथ में बैठे हुए व्यक्ति ने ये महसूस कर लिया, ये अपने जीवन में अपना लिया कि अपने आप वो कुछ नहीं कर पाएगा। So he pulled his hand and allowed him to come into the chariot. तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को हाथ देकर उसे रथ में वापस अंदर ला दिया अपने पास। And then he told that man, "You sit at the back and tell me what to do now." और फिर उस व्यक्ति ने, रथ में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा उस बुजुर्ग से, तू पीछे बैठ और मुझे बता कि क्या करना है अभी। But that man said, "It doesn't work again. परंतु बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा ऐसे नहीं होगा, You sit and you give the cables in my hand." तू पीछे बैठ और तेरे जो लगाम है वो तू मेरे हाथ में दे।
But this man said, this is my chariot, these are my horses, and I'm handling this. परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो मेरा रथ है, ये मेरे घोड़े हैं और मैं इसे नियंत्रण में कर रहा हूं। But that man said, it doesn't work out, brother. It doesn't work out. परंतु उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता है। But finally, this fellow found out that he is going to be in a danger if he doesn't control the chariot. और अंततः उस रथ के मालिक ने ऐसे समझ लिया कि वो खतरे में पड़ जाएगा यदि वो रथ अभी नियंत्रण में नहीं आया तो। And he decided to give up. और फिर उसने सोचा कि वो हार मान लेगा अभी। So he gave the cables into that man's hand and he went and sat behind. तो फिर उसके बाद उसने वो जो लगाम थी वो उस बुजुर्ग हाथ में देकर वो खुद पीछे जाके बैठा अभी। And within no time, that man brought the entire chariot into control. और कोई समय नहीं लगा, थोड़े ही चंद मिनटों में ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस रथ को अपने नियंत्रण में ले लिया और शांत किया। This is exactly what the Lord wants to do with all of us. और ये परमेश्वर जो है हमारे साथ ऐसे ही करना चाहते हैं। It is not enough to accept him into our hearts, into our life. हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में उन्हें ग्रहण करना काफी नहीं है। But we need to give every cable of our life into the hands of the Lord Jesus. परंतु हमारे जीवन की हर एक लगाम जो है हमें यीशु मसीह के हाथ में देने की आवश्यकता है। That means giving the control of your life into the hands of the Lord. इसका मतलब है हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण जो है वो हमारे प्रभु के हाथ में देना। It means that giving a total ruling to the Lord Jesus Christ. इसका मतलब है अपने जीवन का पूरा राज जो है वो यीशु मसीह के हाथ में दे देना। But many Christians fail in doing this. परंतु अनेक मसीही हैं जो ऐसा करने में निष्फल रहते हैं। They receive Jesus Christ, but they have not given any authority to him over their lives. वे यीशु मसीह को ग्रहण तो करते हैं परंतु अपने जीवन का कोई अधिकार वे प्रभु के हाथ में नहीं देते हैं। But today we see that Jesus is entering into Jerusalem as a king. आज हमने देखा कि जो यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में एक राजा के तौर पे प्रवेश कर रहे हैं। So we need to receive him as a king and allow him to rule our lives. तो इसका मतलब है हमें एक राजा के तौर पे उन्हें प्रवेश करने उनका स्वागत करने की आवश्यकता है और हमारे जीवन का नियंत्रण राज उनके हाथ में देने की आवश्यकता है। The question that I want to ask this morning is, जो प्रश्न मैं आपको आज पूछना चाहता हूं वो ये है, who is ruling your life? आपके जीवन में राज कौन करता है? Who is the king of your life? आपके जीवन का राजा कौन है? Is it you or Satan or God himself? क्या वो आप है या शैतान है या खुद परमेश्वर है? That is the question we need to answer today. और ये प्रश्न का उत्तर हम सबों को आज देने की आवश्यकता है। If you try to rule your own life, you will get nowhere. यदि आप अपने जीवन का राज खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। But if you hand over your life to Satan, you will be in a much danger in your life. और यदि आप अपने जीवन को शैतान के हाथ में राज करने के लिए दे देंगे तो और खतरे में हो जाएंगे आप। But if you hand over your life to the Lord Jesus Christ, परंतु यदि आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में देंगे, and you can see how beautifully your life is being led by him. तो आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि कितनी सुंदर रीति से हमारे जीवनों की अगुवाई वे करेंगे। And what is the second thing that is been revealed in 19th chapter 38th verse? और दूसरी ऐसी कौन सी बात है जो लूका रचित सुसमाचार 19 और 38 में हमारे सामने प्रकट की गई है? It says peace in heaven. और वहां पर लिखा है स्वर्ग में शांति। That means Jesus is coming as a peacemaker. इसका मतलब है यीशु मसीह एक शांति के दूत के तौर पे आते हैं। He is not only a king but also a peacemaker. वो ना ही केवल एक राजा है परंतु शांति स्थापन करने वाली व्यक्ति है। That's what even the book of Isaiah says when he was born as a prince of peace. और इसी प्रकार की बात यशायाह के पुस्तक में भी लिखी है कि जब वो जन्मा था तब एक शांति के राजकुमार के तौर पे वो जन्मा था। Jesus can only bring peace to our lives. यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति ला सकते हैं। Jesus is the only person that can bring peace in the families. और हमारे परिवारों में भी यीशु मसीह एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो हमारे परिवारों में शांति ला सकती है। Jesus is the only one that can bring
peace among the nations. यीशु मसीह एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो देशों के मध्य में भी शांति की स्थापना कर सकते हैं। You can have any number of international peace summits. आप कितने भी अनगिनत जो है शांति के सम्मेलनों को आप क्यों ना आयोजित, You can change any number of national leaders in any country. कितने भी देशों में कितने भी आप राजनीतिक अगुवे क्यों ना बदल दे, No one can bring peace in any nation. कोई भी देश में ऐसा कोई भी अगुवा कभी शांति की स्थापना नहीं कर सकता। It is only Jesus Christ that can bring peace in every nation today. और ये तो केवल और केवल यीशु मसीह है जो हर एक देश में भी शांति की स्थापना कर सकते हैं। Any nation that receives the Lord Jesus as the King and the Lord in the nation, that nation will be at peace. जो भी देश जो है अपने देश के अंदर यीशु मसीह को एक प्रभु और एक राजा के तौर पे जब स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं, तब वो जो राज्य है, वो जो देश है, वो शांति में रहेगा। You know, when you go to in India, when you go to a state of Mizoram, आप भारत में जब आप मिजोरम नाम के एक राज्य में जब आप जाते हैं, the entire Mizoram is a Christian state. पूरा का पूरा मिजोरम जो है एक मसीही राज्य है। Even in their secretariat, in their in assembly, state assembly, they have a budget for the revival meetings. और उनके विधानसभा के अंदर भी हमें पता है कि रिवाइवल मीटिंग्स जो है, जो आत्मिक जागरण की जो सभाएं होती है, उसके लिए भी उनके पास बजट है। And in a local city bus, you can see a conductor asking some passenger to pray before the bus starts. और फिर वहां की जो शहर की जो बस चलती है, वहां पर सिटी सर्विस जो चलती है, वहां पर भी जो कंडक्टर है वो बस शुरू करने से पहले वहां पर किसी लोगों को कहता है कि आप बस शुरू करने से पहले प्रार्थना कराइए। You can see the whole atmosphere of Christianity and the Christ atmosphere in that state. और पूरे राज्य के अंदर आप एक मसीहत से भरा हुआ पूरा संस्कृति और पूरा जो संदर्भ है वो देखते हैं। Wherever the Lord Jesus is there, there will be peace in that place. जहां कहीं पर भी यीशु मसीह होंगे, वहां पर उस जगह पे शांति की स्थापना होगी। No psychologist or no psychiatrist can bring peace among the families, among wife and husband today. और किसी भी परिवार में किसी भी पति या पत्नी के बीच में भी कोई भी मनोवैज्ञानिक कभी भी कोई शांति की स्थापना नहीं कर सकता है। It is only Jesus who is the Prince of Peace that can bring peace between the family members. और ये तो केवल और केवल यीशु मसीह है जो शांति का राजकुमार है, जो परिवारजनों में भी शांति की स्थापना कर सकता है। And Jesus also is an eternal God. और यीशु मसीह जो है परमेश्वर जो है वो अनंतकालिक परमेश्वर भी है। And he is eligible to save all of us. और वो हम सबको बचा लेने के लिए सक्षम है। So this is how Jesus was manifesting himself when he entered into Jerusalem. तो इसी तरह से यीशु मसीह अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे जब वे यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। But then now that the question is, परंतु अब जब हमारे सामने ये प्रश्न है, when Jesus was entering into Jerusalem, there were many kinds of people that were watching him. अब जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब अलग अलग प्रकार के लोग उनको देख रहे थे। What was their response when they looked at Jesus? उन्होंने जब यीशु मसीह के प्रति देखा, तब उनके प्रतिसाद क्या क्या थे? I'm going to give you 5 groups of people today. मैं आपको आज 5 अलग अलग प्रकार के जूथों के लोगों के जूथ के बारे में बताने वाला हूं। The very first group is the disciples. सबसे पहला जो जूथ है वो चेलों का जूथ है। You look at the 37th verse of the 19th chapter. आप 19वें अध्याय के 37वें पद को देखें। There the word of God says, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. और निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। What was the response of the disciples? यहाँ पर चेलों का प्रतिसाद क्या था? When we say disciples, it is not about the 12 disciples we are talking here. अभी जब यहाँ पर हम चेलों की बात करते हैं, तो ये केवल वो 12 चेलों की, 12 प्रेरितों की बात नहीं कर रहे हैं हम।
The Bible says here, crowd of disciples. बाइबल में लिखा है कि चेलों की मंडली. You know, in the Bible, there are different disciples mentioned. बाइबल के अंदर अलग अलग प्रकार के चेलों का वर्णन किया गया है. There are secret disciples, कुछ जो है वे गुप्त चेले हैं, and there are 3 very important close disciples for the Lord. और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नजदीक के चेले भी हैं यीशु मसीह के. And there are 12 disciples which he has chosen. और फिर 12 चेले हैं जिनको यीशु मसीह ने खुद चुना है, खुद नियुक्त किया है. And then he sent 72 of them, 2 by 2, into the world. और फिर संसार के अंदर 72 लोगों को 2-2 की टोली में उन्होंने भेजा था. And then we see in the Acts there are 120 disciples gathering in the upper room. और फिर प्रेरितों के काम में देखते हैं कि उस ऊपर की खोली के अंदर 120 चेले जो है वे जमा हुए थे. And then when you read the whole book of Acts, you see there are a crowd of disciples following him. और फिर प्रेरितों के काम को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बड़ी विश्वासियों की भीड़ थी जो उनके पीछे चल रही थी. And there were many people who were following Jesus Christ in those days. और फिर उस समय में यीशु मसीह के अनुयायी के तौर पे पीछे चलने वाले अनेक ऐसे लोग थे. And here we see a crowd of disciples again. They were following when Jesus was entering into Jerusalem. और यहाँ पर फिर से एक बार हम देखते हैं ये चेलों की मंडली है जो यीशु मसीह के पीछे चल रही है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं. Why were they following? अभी वे यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे थे? Because of gratitude towards him. क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए चमत्कारिक कार्य थे उनके लिए वे आभारी थे. They have received so much from him. उन्होंने प्रभु के द्वारा उनके पास से बहुत कुछ ग्रहण किया है. They have seen mighty works done by him in their lives. और उनके जीवनों के अंदर यीशु मसीह के द्वारा किए गए पराक्रमी कार्यों का उन्होंने अनुभव किया है. They could not but follow him at this time. और इस समय वे और कुछ नहीं कर सकते थे, बस यीशु मसीह के पीछे चल सकते थे. What a beautiful lesson it is for us today. ये कितना सुंदर शिक्षण है हम सभी के लिए आज. It is good to receive miracles from the Lord. ये अच्छा है कि हम परमेश्वर की ओर से चमत्कारों को प्राप्त करें. But it is not enough to receive miracles from the Lord. परंतु ये पर्याप्त या काफी नहीं है कि हम बस चमत्कार ग्रहण करके रुक जाएं. But what is our response in receiving those miracles from the Lord? परंतु हमारा प्रतिसाद क्या है जब हम उन चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं? We need to commit ourselves to follow him every day. हमें तो अपने आप का समर्पण करना चाहिए कि हम उनके पीछे दिन प्रतिदिन चलते रहे. Why do you want to follow him every day? आपको क्यों दिन प्रतिदिन उनके पीछे चलना है? Not to see another miracle in your life. दूसरे कोई चमत्कार की अपेक्षा के साथ नहीं. It is only on a gratitude for what you have already received. और ये तो केवल और केवल उपकार स्तुति सहित जो आपके जीवन में आपने पहले प्राप्त किया है उसकी वजह से. And today many people follow him for some benefit out of that. और आज के समय में अनेक ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे चलते हैं ताकि उससे वे कुछ प्राप्त कर सके. But what are we doing by what we have already received? परंतु जो हमने प्राप्त किया हुआ है भूतकाल में उसके लिए हम क्या करते हैं? We need to commit ourselves to follow him every day as disciples of Jesus Christ. दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के चेले के तरह उनके पीछे चलने के लिए हमें हमारे जीवनों में समर्पित अब करना चाहिए. This is the first response of the disciples. ये पहला प्रतिसाद हमने देखा जो चेलों का था. So the first group is the disciples that we have seen now. तो पहला जो जूथ है वो चेलों की मंडली है जो अभी हमने देखा. Please turn to Matthew chapter 21. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय को आप खोले. And we are reading verse 9 and also verse 10 and 11. हम 9 से 11 पद को पढ़ना चाहते हैं. Here the word of God says, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? And the crowd answered, this is Jesus, the prophet
from Nazareth in Galilee. और फिर वहां पर लिखा है, और जो भीड़ आगे आगे जाती है और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है? तो लोगों ने कहा, यह गलील के नासरेत का भविष्यवक्ता यीशु है। Here we see the second group of people that are following Jesus. यहाँ पर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले दूसरे जुट को देखते हैं। First we saw disciples. सबसे पहले हमने चेलों के बारे में देखा। Now we are seeing a mob, a general mob. अब यहाँ पर हम एक साधारण भीड़ के बारे में देख रहे हैं। But very interestingly, they were shouting Hosanna. और बहुत ही रसप्रद बात है कि वे यहाँ पर होसाना के पुकार कर रहे थे। That is the right shout from the mob. और ये भीड़ में से ये सही पुकार है ये भीड़ की। I already told you the meaning of Hosanna is save us. और मैंने आपको पहले ही कहा कि होसाना का मतलब है कि हमें बचाओ। Today the entire world has to look at Jesus and say Hosanna. आज पूरे संसार को यीशु मसीह के प्रति देखकर होसाना पुकार करने की आवश्यकता है। Because he is the only one who can save the world today. क्योंकि आज वो ही अकेले हैं जो काबिल है कि पूरे संसार को बचा ले। I wish a day will come when the entire world will turn to him and say Hosanna. मैं आशा रखता हूं कि ऐसा दिन आएगा जब पूरा संसार उनके प्रति मुड़ के कहेगा होसाना होसाना। And when people were shouting Hosanna, the other whole city, they were stirred and they were asking questions. Who is this man? और यहाँ पर जब ये भीड़ होसाना होसाना का पुकार कर रही थी, वहां पर पूरा जो वहां का शहर था वो हलचल वहां पर मच गए और वो पूछने लगे, ये कौन है? And the mob themselves said, this is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. और फिर वहां पर लोगों ने भीड़ ने प्रत्युत्तर दे दिया कि यह गलील के नाजरेत का भविष्यवक्ता यीशु है। I don't know whether they have said it knowingly or unknowingly. मुझे नहीं पता उन्होंने जानकर या अनजाने में ये कहा है। But what they have said is very true. परंतु उन्होंने जो कहा है वो एकदम सही है। The answer given is not by the disciples but by the general mob. ये जो प्रत्युत्तर है वो चेलों की मंडली ने नहीं दिया है परंतु साधारण भीड़ ने दिया है। What did the general mob say? This is Jesus. ये साधारण भीड़ ने क्या कहा कि ये यीशु है। What does that mean? यीशु का मतलब क्या है? Jesus means savior. और यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता। So they have realized that the one who is coming on a donkey today is not an ordinary person, but he is the savior of the world today. तो इसका मतलब है उन्होंने अब ये समझ लिया है कि जो वहां पर वो गधे पर सवार होकर आ रहा है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है परंतु इस संसार का उद्धार करता है। That's why they said, Hosanna, save us, Lord. और इसीलिए उन्होंने कहा कि होसाना, हमें बचाओ अभी परमेश्वर। What a wonderful revelation that is today. कितना बहुत ही अद्भुत ऐसा प्रकटीकरण है जो हमारे सामने आज रखा गया है। My question today for you is, are you understanding that Jesus is the savior of the world? मेरा प्रश्न आपके लिए है ये है कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह संसार के उद्धार करता है? Do you believe that he came as a savior to this world? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो इस संसार के अंदर एक उद्धारकर्ता के तौर पे आए हैं? That's what the angel of the Lord told to Mary. और इसी बात को तो परमेश्वर के दूत ने मरियम से कहा था। You will give birth to a son and you will name him Jesus because he will save his people from their sins. और उसने कहा था कि तुझे एक पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम तू यीशु रखेगी क्योंकि वो जो है अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा। That is Jesus, a savior born to all of us. और वो यीशु मसीह है, एक उद्धारकर्ता जो हमारे लिए जन्म लिए। While we gather for a worship today, जब हम आज एक आराधना के लिए एकत्र होते हैं, you need to understand that he is the King of Kings, first of all. सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वो राजाओं के राजा है। And then you need to understand that he is the savior of the world. फिर दूसरी बात आपको समझने की आवश्यकता है कि वो इस संसार के उद्धार करता है। And no one else can save you from your sins. और आपके पापों से आपको और कोई नहीं बचा सकता है। Only Jesus can do that for you. केवल और केवल यीशु मसीह ही आपके लिए कर सकते हैं।
how much worship that you give, how much money that you pay, your sins will not be taken away. कितनी भी आराधना आप कर ले, कितने भी आप यज्ञ चढ़ाए, कितने भी पैसे आप दे दे, आपके पापों को कभी नहीं धो सकते हैं वे। He came as to give his life as a ransom so that we can all be saved and redeemed from this sin. और वे हम सबों के लिए एक यज्ञ के तौर पे, एक कीमत के तौर पे आए ताकि उनके प्राण देने से हम सबों को बचा लिया जाए। What else the mob declared that day? और उसी दिन उस भीड़ ने एक और कौन सी बात की घोषणा की? They said he is a prophet from Nazareth. और उन्होंने कहा कि वो तो नाजरेत के गलील का एक भविष्यवक्ता है। Not only a savior but a prophet. एक उद्धारकर्ता ही नहीं केवल, पर एक भविष्यवक्ता भी। What a beautiful 3 titles we have seen about the Lord Jesus today. और कितने सुंदर 3 शीर्षक हमने यीशु मसीह के बारे में देखे। King, Savior and the prophet. राजा, उद्धारकर्ता और भविष्यवक्ता। And that is what Jesus is today. और वही आज यीशु मसीह है हमारे लिए। As a prophet, he brings God's word to all of us. एक भविष्यवक्ता के तौर पे वो प्रभु का वचन हम सभी के लिए लाते हैं आज। And what is the third group of people? और वहां पर अभी तीसरा कौन सा जूथ है लोगों का? In Matthew's Gospel, chapter 21, मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में, and then verse 10, we have already seen that. और वहां पर 10वां पद जो हमने पहले ही देखा है। What did we see there? वहां पर हमने किस बात पर देखा था? It is talking about the whole city. और वहां पर सारे नगर, सारे शहर की बात की गई है। What happened to them? उनको क्या हुआ? What was their response? उनका प्रतिसाद क्या था? The Bible says they were stirred in their hearts. बाइबल में लिखा है कि वो अपने हृदय में उनको हलचल हो गई थी। It means that they were shaken, they were troubled. इसका मतलब है कि वो बहुत ही चिंतित हो गए थे, बहुत ही हिल गए थे वो अपने आप में। I was wondering why they were troubled. मैं सोच रहा था कि वो एकदम चिंतित क्यों हो गए थे। Until then, they must have seen different kinds of leaders in that city. और अब तक शायद उन्होंने अलग अलग प्रकार के अगुवों को देखा होगा उस शहर के अंदर। Now there is a different man coming into the city and a big mob is following him. अभी एक अलग व्यक्ति शहर में प्रवेश कर रहा है और एक बहुत बड़ी सी भीड़ उसके पीछे चल रही है। Is he going to be an MLA today? क्या वो एक सांसद बनने वाला है? Oh, he's going to be a big leader and everybody will going to turn towards him or what? और वो बहुत ही अगवा क्या वो बहुत ही बड़ा अगवा बनने वाला है और सब लोग फिर उसके पीछे पीछे चलेंगे? They were troubled in the heart. उनके हृदय में उनको चिंता होने लगी। Exactly, that is what happened to King Herod. और इसी बात का अनुभव हेरोद राजा ने भी किया था। When the wise men came and asked about where is the king of Jews that was born. और फिर जब वो ज्ञानी पुरुष ने आके फिर हेरोद से पूछा था कि वो यहूदियों का राजा कहाँ है जो जन्म लेने वाला है। And Herod was deeply troubled within the heart. और हेरोद अपने मन में बहुत ही चिंतित हो गया था अभी। He thought he was the only king until that time. उसने सोचा था कि उस समय तक वो अकेला ही राजा है। But suddenly he is hearing from somebody else that a king is born. परंतु एकदम से वो किसी और से सुन रहा है कि दूसरा एक राजा जन्म लिया है। You know, some people do not want to lose their positions. आपको पता है कुछ लोगों को वो जिस जगह पे है, जिस स्तर पर है, वो कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। They want to rule their own lives. वो चाहते हैं कि वो अपने जीवनों का खुद राज करे। They don't allow anybody else to come into their life. वो किसी और को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। They will be shaken and troubled if somebody is coming into their life, into their position. वो बहुत ही हिल जाएंगे, मन में चिंतित हो जाएंगे, या फिर यदि उनके जीवन में या फिर उनकी जगह पे कोई और आने का प्रयत्न करेगा तो। This is the third group of people. ये लोगों का तीसरा जुट है। And now let us see the fourth group of people. आइए हम चौथे प्रकार के लोगों को देखते हैं अभी। Luke's Gospel, chapter 19. लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में Verse 39. और उसका 39वां पद।
some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." और भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे कि हे गुरु, अपने चेलों को डांट। Now we see the fourth group, the Pharisees. और अभी हम चौथे जुट के बारे में देख रहे हैं जो फरीसी थे। These are the top leaders of the city. और वो तो उस नगर के बहुत ही उच्च स्तर के अगुवे हैं। They are the ones who are ruling the city now. और ये तो दरअसल में वे लोग हैं जो इस नगर पर राज कर रहे हैं। They were deeply troubled within the heart too. और वो उस भीड़ में से भी थे जो अपने मन में हलचल का अनुभव कर रहे थे। They don't want to listen to Hosanna, Hosanna and all that. वो ये सब होसाना होसाना नहीं सुनना चाहते हैं। They don't want to listen to Son of David, Jesus, all those words. और दाऊद की संतान या फिर यीशु मसीह या फिर ऐसे सब शब्दों को वे सुनना नहीं चाहते हैं। And they came directly to Jesus and said, "You stop them." और फिर वो सीधा यीशु मसीह के पास आए और उन्हें कहा कि उनको रोक अभी तू। But they did not know that it was not Jesus who told them to do that. पर उनको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह ने उनको ये सब करने के लिए नहीं कहा था। Jesus never told anybody what to say. और यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं कहा था कि तुम क्या कहो। But today when a political leader is going on a procession, he gives money to people and he will tell them what to shout. और फिर परंतु आज जब किसी राजनीतिक जो अगवा है वो जब रैली पर निकलता है वो लोगों को पैसे देके कहता है कि तुम ये बोलना। But Jesus has never given any money to anybody there. परंतु यीशु मसीह ने तो कभी किसी को कोई पैसे नहीं दिए। I told you a big mob is following because of the gratitude. मैंने आपको कहा था बड़ी सी भीड़ उसके पीछे चल रही थी अपने हृदय में उपकार स्तुति के साथ। And whatever they understood about him, they were shouting at those names. और जो भी चीजें वे उसके बारे में समझे उस नामों से वो पुकार रहे थे वहां पर। But here comes the Pharisees and says, "You stop them." परंतु यहाँ पर अभी फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, उसे कहने लगे हैं कि अब तू उसे रोक। Do you think even if Jesus says they will stop it? आपको क्या लगता है यीशु मसीह कहेंगे तो भी क्या वो रुकेंगे? Their hearts will not stop praising him. और उनके हृदय उनकी उपकार स्तुति धन्यवाद करने के लिए नहीं रुकेंगे। But the Pharisees are the religious leaders of that day. परंतु ये फरीसी जो उस समय के धार्मिक अगुवे थे, They wanted to shut the mouths of the mob. वे उस भीड़ की पुकार, भीड़ के चिल्लाने को रोकना चाहते थे। They wanted to stop the praises of Jesus. और वे यीशु मसीह की जो स्तुति हो रही थी वहां पर उन सब चीजों को वो रोकना चाहते थे। Does something come in your mind when you think of this? क्या ये सुनने पर आपके मन में कुछ आता है अभी? The same situation is prevailing today in India. भारत में भी आज के समय इसी संदर्भ, इसी प्रकार की परिस्थिति का सर्जन हुआ है। There is a group of people that do not want to hear the name of Jesus in India. और एक ऐसा जुट है जो भारत के अंदर यीशु मसीह का नाम सुनना ही नहीं चाहता है। They don't want to listen to the praises of Jesus, the songs of Jesus in India. भारत के अंदर यीशु मसीह की स्तुति हो या फिर भारत के अंदर यीशु मसीह के गीत गाए जाए, वे चाहते ही नहीं, वे सुनना नहीं चाहते ये सब कुछ। They don't want to even hear the name of Jesus in India. और भारत के अंदर वो यीशु मसीह का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। That's why they stop worshiping. They stop worship places. और इसीलिए वे आराधनालयों को या फिर भजन स्थानों को वे बंद कर रहे हैं। Because they cannot directly go to Jesus now and ask anything. क्योंकि वो अभी डायरेक्ट सीधा रीति से यीशु मसीह के पास जाके उन्हें नहीं बोल सकते हैं कुछ। So they are destroying the temples, they are destroying the churches, they are destroying the worship group, they are destroying the believers today. इसीलिए वे कलीसियाओं को तहस नहस कर रहे हैं, विश्वासी समुदायों को वो परेशान कर रहे हैं, जो विश्वासी लोग हैं उन्हें तहस नहस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। They pull out all the PA systems wherever they see the praises of God are being proclaimed. और जहां कहीं पर भी जो भी जगह पर परमेश्वर की स्तुति की घोषणा हो रही हो, उन सब जगहों पर जाके जो व्यवस्थाएं है ध्वनि की, सब चीजों को तहस नहस करने पर लगे हुए हैं। Why are they doing this? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? If Jesus is not a real God, they would never bother about this. यदि यीशु मसीह सचमुच में सच्चे परमेश्वर नहीं होते थे तो इसके बारे में वे सोचते भी नहीं थे। They themselves know that Jesus is a real God. उनके खुद को पता है कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है।
one day the entire India will become the India for Jesus. और उन्हें पता है, उन्हें ये डर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत मसीह का भारत बनने वाला है। So they are trying their level best to stop wherever possible the name of Jesus to be proclaimed. और इसीलिए जितना हो सके उतना वो अर्थार्थ प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां कहीं पर भी मसीह का नाम पुकारा जाए उन सब चीजों को रोक दिया जाए। Do you think they will take victory in that line? आपको क्या लगता है वो उसी प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे, विजय हो पाएंगे? But you know what the Bible says? परंतु आपको पता है पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? In 2 Timothy 2nd chapter verse 9 says, दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय और 9वें पद में लिखा है, you can bind an evangelist, but you can never bind evangelism. आप हमेशा किसी सेवक को आप बांध सकते हैं, परंतु जो सुसमाचार है उसे आप बांध नहीं सकते हैं। Paul says, chained, but gospel is not chained. पौलुस कहता है कि मैं बंदीवान हूं, मुझे बंदी बनाया गया है, परंतु सुसमाचार को बंदी नहीं बनाया गया है। You can bind an evangelist, but you can never bind the evangelism that takes place. आप किसी सेवक को बंदी बना सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को कैद नहीं कर सकते हैं आप। I want to tell you something today. मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। You can put every pastor, every missionary into jails today. आज आप हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को, हर एक पासवान को, हर एक मिशनरी को आप उस कारावास में डाल सकते हैं। But I want to tell you boldly, still the gospel will spread in India without any doubt. परंतु बहुत ही स्पष्ट रीति से मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर भी ये करने के बावजूद भी सुसमाचार पूरे भारत में फैलेगा। God knows how to take the gospel to the nook and corner of our land. और हमारे इस देश के, हमारे इस जमीन के कोने कोने तक किस तरह से सुसमाचार को लेके जाना है, ये परमेश्वर को पता है। The same Pharisees in John's Gospel, chapter 12, verse 19, they said, the world is going after him. और वहां पर उसी फरीसी लोगों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में कहा था कि पूरी दुनिया उसके पीछे जा रही है। They were scared of their position and power. उनके पास जो सत्ता थी उसके लिए अभी उनको डर लग रहा था, उनकी कुर्सियों के लिए। They were scared of their political feelings. उनकी जो राजनीतिक भावनाएं थी उनके लिए उनको डर लग रहा था अभी। They thought one day people won't listen to them at all. उनको ऐसे डर लगने लगा कि एक दिन आएगा जब ये लोग उनका सुनेंगे ही नहीं। That's why they want to see the end of Jesus. और इसीलिए वे यीशु मसीह का अंत देखना चाहते थे। अब That was the Pharisees. ये फरीसियों का जुट था। And then what is the fifth group that we see? अभी पांचवा कौन सा जुट है जो हम यहाँ पर देखते हैं? Please come to Matthew chapter 21. आप मत्ती 21 को खोले। Matthew chapter 21 verse 15. और मत्ती 21 और 15वां पद। We see here the chief priest and the teachers of the law, and they saw that the children were shouting in the temple area, Hosanna to the son of David, and they were indignant, and they came and said, do you hear what these children are saying? They were asking Jesus all these questions. और वहां पर लिखा है कि परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए हैं और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उसे कहने लगे कि क्या तू सुनता है ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें वो यीशु मसीह के सामने करने लगे। अभी What was the response of the priest? यहाँ पर याजकों का क्या प्रतिसाद था? They were roused with anger. वे क्रोधित हो गए थे। Very interesting to note, even the priests were not happy. बहुत ही रसप्रद बात है ये जानने के लिए कि जो याजक थे वो भी खुश नहीं थे। You know, sometimes even religious leaders are. Sir, I didn't hear you, sir. Religious leaders are opposing the Lord Jesus Christ. आपको पता है काफी बार धार्मिक अगुवे भी यीशु मसीह का विरोध करते हैं। Yeah, even today we see such kind of a situation even in India. भारत में आज के समय में भी हम इसी प्रकार की परिस्थितियों को काफी बार देखते हैं। So we have seen 5 groups of people today.
तो आज हमने 5 अलग अलग प्रकार के जूतों के बारे में देखा है। We have seen disciples. हमने चेलों के मंडली के बारे में देखा। They were praising God because of what they have done, what Jesus has done in their lives. वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने जो उनके जीवन में कार्य किया था उसके लिए। And we have seen a general mob. They were talking that Jesus is a savior and a prophet. और फिर साधारण भीड़ के बारे में हमने देखा जो बता रहे थे कि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, एक उद्धारकर्ता है। And we have seen a city people. They were greatly troubled and shaken in their hearts. और फिर वहां पर नगर के लोगों को, दूसरी भीड़ के बारे में, नगर के लोगों के बारे में हमने देखा जो अपने मन में बहुत ही चिंतित हो गए थे, जो घबरा गए थे अभी। And then we have seen Pharisees. They want to stop the entire event. और फिर फरीसी लोगों के बारे में हमने देखा जो पूरी इस घटना को बंद कर देना चाहते थे। And the priest we have seen at the end, they rose with anger. और फिर उसके बाद याजक का जो जूत था वे क्रोधित हो गए थे। And they said, stop the children at least. और फिर उन्होंने कहा कि इन बच्चों को रोक दो कम से कम। Who can stop anybody that day? और उस दिन तो कौन किसको क्या रोक पाता था। And Jesus said, even if you stop everybody, every stone will praise me, he said. और उन्होंने कहा कि तुम सबको चुप कर दोगे फिर भी आज पत्थर भी पुकार उठेंगे कि मेरी स्तुति में। This is what the world has to know today. आज इस संसार को ये जानने की आवश्यकता है। No one can touch Jesus today. कोई यीशु मसीह को छू नहीं सकता है। If he wants to establish his kingdom, he will establish his kingdom on this earth. यदि वे अपने राज्य को स्थापित करना चाहते हैं तो वो अपने राज्य को स्थापित इस संसार में करेंगे। And there were 3 lessons at the end we see. और अंततः हम देखते हैं 3 अलग अलग प्रकार के सबक हमारे लिए हैं। First is that Jesus uses an unworthy donkey. सबसे पहली बात, यीशु मसीह एक अयोग्य ऐसे गधे का उपयोग करते हैं। In the book of Zechariah, chapter 9 and verse 9 says, the king is coming on a lowly, riding on a donkey, lowly riding on a donkey. और जकरिया का पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में इस प्रकार लिखा गया है, सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जय कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाएगा, वह दीन है और वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। He's not coming on a white horse. वो कोई सफेद घोड़े पर सवार नहीं आ रहा है। He's not coming with a sword. वो अपने हाथ में तलवार को लेके नहीं आ रहा है। He's not coming with an iron rod. वो कोई लोहे की लकड़ी को अपने हाथ में लेके नहीं आ रहा है। He's not coming with a scepter as a king. एक राजा के तरह अपने हाथ में सब कुछ लेके वो नहीं आ रहा है। But that will happen on the day of the judgment. परंतु वो होगा उस न्याय के दिन। Today he's humbling himself and he wants to give his life to the entire mankind. आज वो अपने आप को नम्र करके अपने जीवन को पूरी मानव जात के लिए देना चाहता है। As a humble person he enters today. एक नम्र व्यक्ति के तौर पे वे प्रवेश करते हैं आज। And after that we see that Jesus was cursing the fig tree. और फिर हम दूसरी बात जो देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अंजीर के वृक्ष को श्राप देते हैं। What is the lesson we learn there? वहां पर हम किस शिक्षण को प्राप्त करते हैं? He cannot tolerate hypocrisy. और वो जो है यीशु मसीह जो है ढोंगीपन को कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। You know, the fig tree is acting as if it has got fruit, but no fruits, only leaves are there. और वो जो अंजीर का पेड़ है वो ऐसे ढोंग कर रहा है कि उसके पास फल है परंतु उसके पास कोई फल नहीं है, केवल पत्ते हैं। No hypocrisy will be accepted by the Lord. प्रभु के द्वारा कोई ढोंगीपन को स्वीकारा नहीं जाएगा। Now what is the third lesson we learn? और तीसरा कौन सा शिक्षण है जो हम सबक सीखते हैं इससे? Yes, before that we see Jesus was cleansing the temple. उसके पहले हमने देखा था यीशु मसीह जो है वे मंदिर के शुद्धिकरण को कर रहे थे। He cannot tolerate uncleanness. वे अशुद्धि को कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। He cannot tolerate sin. वो पाप को सहन नहीं कर सकते हैं। So Jesus came to take away the sin from our lives. तो इसीलिए हमारे जीवनों में से पाप को ले जाने के लिए यीशु मसीह आए। What a wonderful God we have today.
कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा आज। So my final question is this. तो मेरा आखिरी अंतिम प्रश्न आपके लिए ये है, You're all sitting here to worship the Lord today. आज आप यहाँ पर सभी लोग जो है वह परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एकत्रित है। I wanted to ask you, out of the 5 groups of people, which group do you belong? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये जो 5 अलग अलग जूथों के बारे में हमने देखा, उसमें से कौन से जूथ के आप भाग है? What is your response when you look at the Lord Jesus Christ? जब आप प्रभु को देखते हैं तो आपका प्रतिसाद क्या है? Do you want to accept him or you want to reject him? क्या आप उनको ग्रहण करना चाहते हैं या फिर उनका आप तिरस्कार करना चाहते हैं? But if you want to have a happy and peaceful and holy life, an eternal life, you accept Jesus Christ as your Savior and Lord and King of your life. यदि आप अपने जीवन में शांति, आनंद और पवित्रता के साथ अनंतकालिक जीवन को जीना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वीकार करें कि वो आपका प्रभु है, आपका राजा है। God bless you. प्रभु आप सबों को आशीष दे। Joel can pray. Shall we all look to the Lord in prayer? Most loving God and gracious Heavenly Father, once again we want to thank you and praise you for this very first day of the Holy Week that you enabled us to gather together as your people, as the people who have faith in your Son Jesus Christ. Thank you, Father, for giving us this privilege to listen to your word. Thank you, Father, for the speaker, that you have anointed him with your Holy Spirit, that he may be able to declare your word to us in a way that we may be able to understand it. Father, we want to praise you. We want to thank you for this wonderful time. Thank you, Father, for once again reminding us of Jesus Christ, who is our King, who is our Savior, and who is a prophet who delivers your word to us. Father, at this hour, we submit our lives in the awe of your life that you have given for us on the cross, Father. Father, this hour we want to pray that all the listeners be able to accept Jesus Christ as their own personal Savior, Father. May we not be the group who rejects Jesus Christ. May we not be the group who tries to stop the work of Christ. May we not be the group who is abomination to your name. Lord, help us to always have this response in our heart that all the good things that you have done for us, all the blessings that you have given to us, may we have gratitude in our hearts for that you have done for us, Father. We submit our lives unto you, Father. Once again, we submit our whole Passion Week meetings unto thy mighty care from today onwards, as we meet every evening, Father, till the Easter day. May you bless us. May you bless these meetings. May people be blessed. And Lord, may your kingdom come through us, Father. We ask all this in the most holy and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.